We take you live to Silvassa in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, where Prime Minister Modi will launch a number of schemes. नमस्कार। नए पंख हैं, नई उड़ान, नई दिशा में नए साहस हैं जिनकी पहचान। ऐसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का दादरा व नगर हवेली प्रशासन आज के इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में सिलवासा के आंगन हार्दिक स्वागत करता है। नम्र निवेदन करते हैं श्री प्रफुल्ल भाई पटेल, प्रशासक दमन-दीव दादरा व नगर हवेली, कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही श्री नटू भाई पटेल, श्री लालू भाई पटेल, माननीय सांसद श्री फतेह सिंह चौहान, काउंसिलर। इसी के साथ आज दादरा नगर हवेली भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी माननीय प्रधानमंत्री श्री का स्वागत करेंगे। इनमें हैं श्री हसमुख भंडारी, श्री दिग्विजय सिंह परमार, श्री शंकर वाघमारे, श्री डॉक्टर नरेंद्र देवरे, श्री शैलेंद्र सिन्हा, अनिल पटेल, श्री रघुनाथ कुलकर्णी व श्री कुंदन कलोला। अध्यक्ष सिलवासा नगर पालिका व उनकी टीम भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। सिलवासा नगर पालिका के अध्यक्ष व उनकी टीम स्वागत करेंगे, जिनमें हैं श्री अजय देसाई, श्री जयंती भाई पटेल, श्री हीरा भाई पटेल, श्री रीटाबेन पटेल, श्री छत्र सिंह चौहान, श्री सुभाष भाई पटेल व श्री नीलेश मायावंशी। साथ ही प्रमुख जिला पंचायत व उनकी टीम भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जिनमें हैं श्री महेश गावित, दिलीप भाई गुक्सा, प्रवीण भाई पटेल, रजनी शेट्टी, जशोदाबेन पटेल, भारतीबेन हलपति, भीखूभाई भीमरा व श्री चंद्रकांत पारेख। माननीय प्रधानमंत्री जी का सिलवासा के आंगन आज शानदार स्वागत हो रहा है और कई दिए यहाँ सभा में टिमटिमा रहे हैं। एक अनोखा उत्साह है, अनोखा स्नेह है, प्यार है। गुणवत्ता, श्रेष्ठता हमारे हस्ताक्षर बने, सभी हमारे कार्य उदाहरण उत्तम बने। आमंत्रित करते हैं संघ प्रदेश के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल को आपके स्वागत भाषण के लिए।
ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. દાદરા અને નગર હવેલી સંઘ પ્રદેશના ગરીબોના કલ્યાણ માટે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત લોકલાડીલા નેતા, દીર્ઘદ્રષ્ટા, નવ ભારતના શિલ્પી અને પરમ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કે જેમણે ગાંધીજીના સ્વચ્છતાના સ્વપ્નને વ્યાપક અને અસરકારક રીતે ધરતી પર ઉતારવા માટે સાતત્યપૂર્ણ પ્રયાસ કરી ઐતિહાસિક લાલ કિલ્લા ઉપરથી 15મી ઓગસ્ટે આહવાન કરી સમગ્ર દેશના નાગરિકોને સ્વચ્છતા માટે કાર્યાન્વિત કર્યા. એટલું જ નહીં, સ્વચ્છતાના આગ્રહી પણ બનાવ્યા. મિત્રો, દેશની વૈદિક અને પ્રાચીન યોગ પરંપરા ને સમગ્ર વિશ્વના 190 જેટલા દેશોમાં પહોંચાડી સમગ્ર વિશ્વને માનસિક તેમજ શારીરિક રીતે સ્વસ્થ બનાવવા માટે એક અસરકારક કદમ ઉઠાવેલ છે. જલ્દી પૂરું કરી દઉં છું. દેશના છેવાડે બેઠેલા ગરીબ, શોષિત, પીડિત, વંચિત પ્રજાજનોને જનધનના માધ્યમથી દેશની મુખ્ય ધારા સાથે જોડવાની સફળતાપૂર્વક કામગીરી હાથ ધરી પરિણામો પ્રાપ્ત કર્યા. લેશ કેસના અભિયાનથી દેશની આર્થિક વ્યવસ્થાને એક નવી દિશા બતાવી એક અદ્ભુત ક્રાંતિ સર્જી છે. સામાજિક ક્ષેત્રે બેટી બચાવ, બેટી પઢાઓ હોય કે મહિલા સશક્તિકરણ હોય, ગરીબના માથે છત આપવાની વાત કરી 2022 સુધીમાં દરેક ગરીબ પરિવારને પાકું મકાન મળે એવો એને જેમને દૃઢ સંકલ્પ કર્યો છે. માત્ર ગરીબ કલ્યાણ સૂત્ર નહીં પણ જેનો જીવન મંત્ર છે એવા આદરણીય પરમ શ્રદ્ધેય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું વંદન અભિનંદન કરું છું અને ખૂબ આ સ્વાગત કરતી વખતે આનંદની અનુભૂતિ કરું છું અને ધન્યતાની લાગણી અનુભવું છું. આ વિસ્તારના લોકપ્રિય સાંસદ ભાઈ શ્રી નટુભાઈ, દીવ દમણના સાંસદ ભાઈ લલ્લુભાઈ, ભાઈ રમણભાઈ, ભાઈ રાકેશભાઈ, આ તમામે તમામ મહાનુભાવોનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. હું અંતઃકરણપૂર્વક સંઘ પ્રદેશના સૌ વડીલો, માતા બહેનો, દિવ્યાંગ પરિવારજનો, લાભાર્થી મિત્રો, ઉદ્યોગ ગૃહના આગેવાનો તેમજ મારા વાલા કામદાર મિત્રોનો તેમજ મારા યુવાન મિત્રોનો મોટી સંખ્યામાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહેવા માટે કદાચ થોડી અગવડ પડી છે, થોડી સગવડ પણ હશે. આ સગવડ અગવડ વચ્ચે અહીંયા આપ સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા છો ત્યારે આપ સર્વને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. પુનઃ આ મીડિયા કર્મીઓનું પણ સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે સંઘ પ્રદેશના ઇતિહાસમાં એક સાથે 19,000 કરતાં વધુ લાભાર્થીઓને સહાય આપવાની કદાચ આ સંઘ પ્રદેશની પ્રથમ ઘટના છે. આ ઐતિહાસિક ઘટનાના પ્રેરક અને માર્ગદર્શક જેઓ માત્ર 3.5 લાખ જેટલી જનસંખ્યા તેમજ મર્યાદિત ભૌગોલિક અને રાજકીય વિસ્તાર હોવા છતાં પણ આ સંઘ પ્રદેશમાં પધાર્યા એ બદલ આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું અંતઃકરણપૂર્વક સ્વાગત કરું છું, પુનઃ સ્વાગત કરું છું. આભાર, ધન્યવાદ. आभार. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा कई कार्यों का शुभारंभ किया जाएगा. माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं कि आप रिमोट द्वारा इन कार्यों का दृश्य श्रव्य प्रस्तुति से शुभारंभ करवाएं, जिनमें हैं दमनगंगा सर्किट हाउस, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, दादरा व नगर हवेली में वाईफाई हॉटस्पॉट्स, 3 सोलर पीवी सिस्टम व पासपोर्ट सेवा केंद्र. ભારત દેશને ઉન્નતિની નવી ઊંચાઈઓ સુધી લઈ જનાર દેશના દીર્ઘદ્રષ્ટા અને દ્રઢ નિશ્ચયી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના ક્રાંતિકારી વિચારો અને નિર્ણયોથી પ્રેરણા લઈને સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી પ્રશાસન દ્વારા વિવિધ પરિવર્તન પ્રેરક અને પ્રગતિકારક પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે.
વર્તમાન સમયમાં સમગ્ર સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી વિસ્તાર પ્રગતિના નવા પથ પર મક્કમ પગલે પ્રયાણ કરી રહેલ છે. અહીંના નાગરિકોને આપવામાં આવેલ અનેકવિધ લાભ પૈકી આજે 5 પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ દેશના માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના કરકમળ થકી સંઘ પ્રદેશ દમણ અને દીવ તથા દાદરા અને નગર હવેલીના પ્રશાસક શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલ તેમજ સંસદ સદસ્ય શ્રી નટુભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે. DNH ફ્રી વાઈફાઈ હોટસ્પોટ, દમણગંગા અતિથિગૃહ, પોસ્ટ ઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર, 3 મેગાવોટ સૌર ઉર્જા સ્ટેશન, લેખા ભવન. તો આવો આ 5 પ્રોજેક્ટ્સની મુખ્ય વિશેષતાઓ વિશે જાણીએ. DNH ફ્રી વાઈફાઈ હોટસ્પોટ પ્રધાનમંત્રીશ્રીની ડિજિટલ ઇન્ડિયા પહેલ અંતર્ગત લેવામાં આવેલ એક અતિ મહત્વનું પગલું, જેમાં 5 ટુરિસ્ટ અને 10 શહેરી સ્થાનો પર જનસામાન્યને મળશે 500 MB પ્રતિ ફોન નંબર પ્રતિ દિવસ ડેટા અને તે પણ 10 Mbps સ્પીડ સાથે. પ્રજાજનોને સોશિયલ મીડિયા, સરકારી સેવાઓ, કેશલેસ સેવાઓ, રોજગાર સેવાઓ, ઈ બુકિંગ અને ઈ બુક્સ ડાઉનલોડ જેવી સુવિધાઓનો ઉપહાર, જે કરશે માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું સપનું સાકાર. દમણગંગા અતિથિગૃહ ફક્ત 3 વર્ષ અને 4 મહિનામાં જ રૂપિયા 17.10 કરોડના ખર્ચે તૈયાર આધુનિક કોન્ફરન્સ રૂમ, 10 સ્યુટ્સ, 32 એક્ઝિક્યુટિવ રૂમ્સ અને વિશાળ ડાઇનિંગ હોલ જેવી અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ આ અતિથિગૃહ છે ખાસ, જે આપશે અતિથિઓને એક આહલાદક અહેસાસ. પોસ્ટ ઓફિસ સેવા કેન્દ્ર દાદરા અને નગર હવેલીમાં નાગરિકો માટે પાસપોર્ટ સેવાને ઝડપી અને સરળ બનાવવાની પહેલ, વૃદ્ધો અને બાળકો માટે વિશેષ સુવિધા, નાણાં અને સમયની બચત તેમજ ઓનલાઈન પેમેન્ટનો લાભ, કોલ સેન્ટર, ઓનલાઈન પોર્ટલ તેમજ 42 પોસ્ટ ઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો થકી પાસપોર્ટ સેવાનું વિસ્તરણ. હવે સ્ટ્રીમલાઇન પદ્ધતિ અને પ્રતિબદ્ધ કર્મચારીઓ દ્વારા મળશે પારદર્શક પદ્ધતિથી પાસપોર્ટ સુવિધા, જે દૂર કરશે નાગરિકોની પાસપોર્ટને લગતી તમામ દુવિધા. 3 મેગાવોટ સૌર ઉર્જા સ્ટેશન માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના ગ્રીન એનર્જીના સપનાઓને કરવા સાકાર. બેલુગામ ખાતે 3 મેગાવોટની ક્ષમતા ધરાવતા સોલાર સ્ટેશનને અપાયો છે આકાર. 9.5 એકરમાં 23.76 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત 12,096 સ્વદેશી સોલર પેનલ્સ ધરાવતું આ સોલર સ્ટેશન વૈકલ્પિક ઉર્જાના ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરવા છે તૈયાર. લેખા ભવન ફક્ત 18 મહિનામાં રૂપિયા 9.58 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ વિશાળ પાર્કિંગ, આધુનિક કોન્ફરન્સ રૂમ, ટ્રેઝરી સેવાઓ તેમજ વિકલાંગો માટે ખાસ સુવિધા ધરાવતું લેખા ભવન, જેની સુવિધાઓ બની રહેશે નાગરિકો માટે વધુ સરળ અને સુગમ. આજ રોજ આ 5 યોજનાઓનું દેશના લોક લાડીલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વરદ હસ્તે લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આ સમગ્ર વિસ્તારના નાગરિકોમાં હર્ષોલ્લાસની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે અને તેઓ એક ઉજ્જવળ આવતીકાલના સ્વાગત માટે સુસજ્જ છે. સંઘ પ્રદેશ દાદરા અને નગર હવેલી પ્રશાસનની પ્રતિબદ્ધતા વિકાસને મળે વેગ અને નાગરિકોને મળે સુગમતા. आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका इस लोकार्पण के लिए. आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं. इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस 108 सेवा हेतु 12 एम्बुलेंसेस को मंच पर से झंडी लहराकर कि आप लोकार्पण करें. ये 12 एम्बुलेंसेस MP लैड योजना अंतर्गत है. लोक लाड़ीले सांसद श्री नटुभाई पटेल की स्थानिक विस्तार विकास योजना आज ये 12 एम्बुलेंसेस का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं. मंच के दाईं ओर ये एम्बुलेंसेस पार्क्ड हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये बहुत बड़ी सुविधा आज संघ प्रदेश को प्राप्त हुई है.
जिससे प्रदेश का सर्वांगी व सार्वत्रिक विकास आज बहुत ज़्यादा हुआ है। धन्यवाद। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों लाभार्थियों को विविध सहाय का वितरण किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले 4 औषधि केंद्रों जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स के ड्रग लाइसेंसेस दिए जाएंगे। आमंत्रित करते हैं मंच पर श्री धर्मेश मोहन सिंह चौहान को। श्री महेश ज्ञानदेव वाघमारे, श्री रवि बाबूलाल जांगेड़, श्री रवि बाबूलाल जांगेड़ और कुमारी उर्वशी लक्ष्मण पटेल। आज दिव्यांगजनों को भी सेंसर केन्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर्स व बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर्स दिए जाएंगे। आमंत्रित करते हैं सबसे पहले सेंसर केन स्वीकारने के लिए कलावती दीवड़ भाई वायड़ा को। कलावती दीवड़ भाई वायड़ा। आज 130 दिव्यांगजनों को स्मार्ट केन्स दी जाएंगी, जिनमें से 2 प्रतीकात्मक को यहाँ मंच पर से दी जाएंगी। हरीश भाई रामजी भाई पटेल, आपको याद दिलाएं कि आज 17 तारीख है और 17 सितंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर नवसारी में विश्व विक्रम सर्जक दिव्यांगजन मेले से सुगम्य भारत अभियान को सफलता मिली थी। अब आमंत्रित करते हैं हियरिंग एड्स स्वीकारने के लिए श्री शैलेश रमिया पटेल को। शैलेश रानिया पटेल और साथ ही सारिका राजेश पटेल श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को हियरिंग एड्स देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी शैलेश रानिया पटेल। 232 दिव्यांगजनों को हियरिंग एड्स दिए जाएंगे, जिसमें से प्रतीकात्मक आज 2 जनों को मंच पर दिए जा रहे हैं। सारिका राजेश पटेल। 22 दिव्यांगजनों को आज व्हील चेयर्स देंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। यहाँ प्रतीकात्मक 2 को आमंत्रित करते हैं विशाल जेठिया खरपड़िया को और निर्मला कांति महाला को। निर्मला कांति महाला। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अभिगम हमारे सबके दिल को छू जाता है और इस अलौकिक घटना के आज हम साक्षी हैं। और अब आमंत्रित करते हैं मंच पर बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर स्वीकारने के लिए 419 जन आज प्राप्त करेंगे बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर। कुमारी सोनाली पंकज प्रजापति, ये भी माननीय सांसद श्री नटुभाई पटेल के सांसद स्थानिक विस्तार विकास MP लाड के अंतर्गत 419 बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर्स आज दिए जाएंगे, जिसमें से 2 प्रतीकात्मक हैं। विजय भाई चंदूभाई बीज। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया दिव्यांगजन का ये संबोधन मात्र इनमें एक नई शक्ति, आनंद और आत्मविश्वास का संचार करता है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों आदिवासी वन अधिनियम अंतर्गत खेती करने की जमीन उपयोग करने के अधिकार पत्र पति पत्नी दोनों के नाम दिए जाएंगे। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं श्री धनिया होड़िया वांगड़ व श्रीमती वंशी वांगड़ को। कुल 2325 लाभार्थियों में से प्रतीकात्मक 5 को आज इस मंच पर दिए जाएंगे ये पत्र। श्री गोपाजी रूपाजी कुंवरा
व श्रीमती शांति कुंवरा, श्री गोपाजी रूपाजी कुंवरा व श्रीमती कुंवरा, श्री जन्य अबलू मिशाड़ व श्रीमती लक्ष्मी मिशाड़, श्री जन्य अबलू मिशाड़ व श्रीमती लक्ष्मी मिशाड़, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जनसंपर्क के नेता हैं, मास कनेक्ट के लिए ये जाने जाते हैं, अति लोकप्रिय नेता हैं। श्री रतन जेठिया शिंगड़ तथा श्रीमती गजरी रतन शिंगड़, श्री प्रभु चित्र मोहनकर व श्रीमती शांति प्रभु मोहनकर, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्मति पत्र भी दिए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के वरद हस्तों शहरी आवास में कुल 800 और ग्रामीण आवास में कुल 6234 को आज ये पत्र दिए जाएंगे। यहाँ प्रतीकात्मक 10। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं श्रीमती मनुबेन बुधियाबाई पटेल, कच्चे आवासों को ये सहाय दी गई है श्रीमती प्रमिला रमण भुरकुड़, श्रीमती नैना रघु भगत, श्रीमती शांतिबेन बाबूभाई पटेल, श्रीमती मीना वसंत शिंगड़। ये थे शहरी आवास योजना के सम्मति पत्र। और अब ग्रामीण आवास के सम्मति पत्र के लिए बुलाते हैं मंच पर श्रीमती जनीबेन घाटड़, श्रीमती जनीबेन घाटड़ के बाद आमंत्रित करते हैं श्रीमती कमुबेन सुनील भाई मशिया को, साथ ही श्रीमती जयवंती बहन रामजी भाई धांगड़, ग्रामीण विस्तार की ये प्रधानमंत्री आवास योजना के सम्मति पत्र हैं। आमंत्रित करते हैं श्रीमती गजरी बहन भीखू भाई बीज को, गजरी बहन भीखू भाई बिज और श्रीमती सविता बहन लक्ष्मी भाई पटेल, सविता बहन लक्ष्मी भाई पटेल। महिलाओं को सम्मानित करती उज्ज्वला योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीते परिवारों को गैस कनेक्शन, उत्तम क्वालिटी का 2 बर्नर वाला चूल्हा और 5 लीटर का कुकर दिया जाएगा। आमंत्रित करते हैं श्रीमती संगीताबेन प्रभुभाई टांडेल को। 7,873 महिलाओं परिवारों को ये सहाय दी जा रही है। आज 5 को इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती जयोतिबेन राजेश भाई गावित, जयोतिबेन राजेश भाई गावित, श्रीमती लक्ष्मीबेन दाजी भाई भोया,
श्रीमती सुशीलाबेन प्रभुभाई निकुड़िया, इस आदिवासी विस्तार में लकड़ी से चूल्हे जलाए जाते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और गैस कनेक्शन से लकड़ी की भी बचत होती है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उम्दा विचार और ये उनकी उम्दा भावना महिलाओं को सम्मानित करती गई हैं। तभी तो उज्ज्वला योजनाओं को महिलाओं को सम्मानित करती योजना कहा गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों रोजगार के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। प्रशासन ने 8 रोजगार मेलों द्वारा उद्योगों की सहायता से 1402 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हुआ, जिनमें महिलाएं, विधवा बहनें और दिव्यांगजन भी हैं। आमंत्रित करते हैं पटेल ललिताबेन शंकर भाई को। साथ ही श्रीमती याशिका प्रीतेश भाई वारली, ये प्राप्त करते हैं आज रोजगार के नियुक्ति पत्र। चंपाबेन मणिलाल वार्था तथा श्रीमती हंसाबेन मनोज भाई अहिर। आज प्रशासन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को नमामि गंगे शुद्धिकरण अभियान के लिए रुपए 1 करोड़ और 1 की राशि का चेक अर्पण किया जाएगा। निवेदन करते हैं श्री प्रफुल्ल भाई पटेल तथा आपके सलाहकार श्री SS यादव को कि ये चेक आप माननीय प्रधानमंत्री जी को अर्पण करें। दिल में है स्वप्न और आंखों में आस, भारत के विकास मात्र की जिन्हें है प्यास, ऐसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज प्रधान सेवक बनकर आए हैं, गरीबों को सिर्फ योजनाओं का लाभ नहीं परंतु बेहतर जीवन की उपलब्धियां करवाकर बेहतर जीवन अवसर देना चाहते हैं। गरीबी को नाबूद कर नए भारत का निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। ऐसे एक भारत, श्रेष्ठ भारत, दिव्य भारत, स्वच्छ भारत, सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी को आवो जोरदार ताड़ीओ साथे आमंत्रित करिए आपना संबोधन माटे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्रीमान प्रफुल्ल भाई पटेल, यहां के सांसद श्रीमान नटू भाई, पड़ोस में दमन के सांसद श्री लालू भाई, दादरा नगर एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमान रमन ककवा जी, सिलवासा नगर के अध्यक्ष भाई राकेश चौहान जी और विशाल संख्या में पधारे हुए दादरा नगर हवेली के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मराठी बोलायचं, गुजराती बोलायचं, हिंदी बोलायचं, काय करायचं बोला। अच्छा, आप एक काम करिए,
करेंगे, अपना मोबाइल बाहर निकालिए और मोबाइल बाहर निकाल करके उसकी लाइट जला करके आज के इस भव्य कार्यक्रम का आप स्वागत कीजिए। सबकी लाइटें जलनी चाहिए, हर एक के मोबाइल की लाइट जलनी चाहिए, हर किसी के मोबाइल की लाइट जलनी चाहिए। देखिए, सारे कैमरा वाले आपको अब रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबका हाथ ऊपर चाहिए, एकदम हाथ ऊपर करके हिलाइए। सबका हाथ ऊपर चाहिए। मोबाइल फोन अपना हिलाइए बराबर। देखिए, जगमगते तारे नजर आ रहे हैं सब दूर। देखिए, दादरा नगर हवेली की ताकत देखिए। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कमाल कर दिखाया आप लोगों ने आज। देश के और भूभाग के लोग अगर ये कार्यक्रम देखते होंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य होता होगा। छोटा सा सेलवासा, एक छोटा सा क्षेत्र, हिंदुस्तान की सबसे छोटी जो पार्लियामेंट सीट है उसमें जिसका नाम है, और ये जनसागर कोई देखें तो बड़े से बड़े प्रदेश की रैली भी इतनी बड़ी नहीं होती है। भाइयों बहनों, ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, चाहे दादरा नगर हवेली हो या दीव दमन हो, लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी सरकार कौन सी है। यहां जो कलेक्टर आते थे उसको ही वो सरकार मानते थे। पहली बार प्रफुल्ल भाई को प्रशासक रखने के बाद दादरा नगर हवेली का हर नागरिक को लगने लगा है कि अब दिल्ली में हमारा कोई रखवाला बैठा है। हमारे सुख दुख की चिंता अब दिल्ली से हो रही है। ये पहली बार दादरा नगर हवेली और दीव दमन के लोगों को लगने लगा है। वरना उन्होंने मान लिया था कि भाई क्या करे, यहां तो कोई सरकार तो है नहीं, दिल्ली बहुत दूर है, चलो जैसा है वैसा गुजारा कर लेंगे। लेकिन हमने दिखा दिया कि हिंदुस्तान का छोटा सा छोटा इलाका भी, गरीब से गरीब नागरिक भी, उसका इस देश पर उतना ही हक है जितना दिल्ली में रहने वालों का होता है। और इसलिए ये 125 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है। हर 125 करोड़ देशवासी का, हर नागरिक उसका मालिक है। और उस हर नागरिक का भाग्य बदलना ये इस देश की सामूहिक जिम्मेवारी है। मुझे बताया गया कि यहां पर 1980 के पहले, यानी करीब करीब
35-40 साल पहले कोई प्रधानमंत्री यहां आए थे। जो आज 35 साल के हो गए, उनको तो पता भी नहीं होगा कि क्या प्रधानमंत्री की सूची में ये छोटी सी जगह भी होती है कि नहीं होती। आखिरी बार करीब 35-40 साल पहले भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई यहां आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आज आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। लेकिन मैं पहली बार नहीं आया हूं। शायद ही यहां कोई पंचायत होगी कि जहां मैं गया नहीं हूं। स्कूटर पे दौरा करता था, यहां सैकड़ों परिवार मिल जाएंगे आपको जो बताएंगे कि मोदी जी पहले हमारे यहां आते थे, खाना खाते थे, कभी हमारे यहां चाय पीते थे। कई लोग यहां बैठे होंगे। इस पूरे क्षेत्र में मुझे भ्रमण करने का सौभाग्य मिलता था और इसके कारण मैं आपके सुख दुख से परिचित हूं। यहां पर विकास की संभावनाओं से परिचित हूं और एक प्रकार से अब सिलवासा, दमन ये लघु भारत बन गए हैं, मिनी इंडिया बन गए हैं। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग इस इलाके में रहते नहीं होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने के नागरिक हमारे इस भूभाग में रहते हैं। मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से पूछा एक बार, हमने कहा कि केंद्र सरकार, अब मुझे याद है जब आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने का काम चल रहा था तो पूरे देश में सबसे अच्छा काम जो हुआ वो गुजरात और मध्य प्रदेश में आदिवासियों में हुआ। उसके बावजूद भी, तब मैं यहां मुख्यमंत्री था गुजरात में, भारत सरकार और कांग्रेस के नेता आए दिन आदिवासियों को भड़काते थे, झूठ फैलाते थे और उनको समझाते थे कि ये मोदी सरकार है, गुजरात सरकार है, वो आदिवासियों को जमीन के पट्टे नहीं दे रही है। जब मैं भारत सरकार में बैठा तो मैं हैरान हो गया। जहां कोई बीच में राज्य सरकार नहीं है, जिसमें सीधी सीधी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के अधिकारियों की है, सारे हिंदुस्तान में आदिवासियों को जमीन के हक के पट्टे दिए जाते थे। लेकिन इतने साल तक जिन्होंने दिल्ली में शासन किया और राज्यों को जो कटघरे में खड़ा कर देते थे, झूठे आरोप लगाते थे, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दादरा नगर हवेली में जहां मेरे आदिवासी भाइयों की जनसंख्या है, उनको एक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया था। उनको शोभा नहीं देता था। जब हम सरकार में आए, प्रफुल्ल भाई को यहां काम दिया, हमने कहा भारत सरकार की कौन सी योजना है जो यहां लागू नहीं हुई, निकालो। पहले सरकारी बाबू यूनियन टेरिटरी के क्षेत्रों में जाना पसंद करते थे। उनको लगता है वो राजा रजवाड़े की तरह रहता था उनका। एमपी को संभाल लिया तो काम चल जाता था। ये सच्चाई है ना? सच्चाई है ना? लेकिन अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, मोदी की सरकार है।
यहां जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के लिए दौड़ना पड़ेगा, जनता के सुख के लिए अपनी जात खपानी पड़ेगी। इस मकसद से मैं काम कर रहा हूं और उसी का नतीजा है कि आज यहां पर हजारों परिवार जिनको जमीन के पट्टे आज दिए जा रहे हैं, हजारों आदिवासी परिवार पहली बार अनेक पीढ़ियों से जिस जमीन को वो जोत रहे थे, लेकिन उनके पास एक कागज का टुकड़ा नहीं था कि वो उनका कोई हक बनता है। मैं आज दादरा नगर हवेली के प्रशासक जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं कि मेरे प्यारे आदिवासी भाइयों बहनों को उनको हक दिलाने का इतना बड़ा काम किया और मेरे हाथों से ये हजारों परिवारों को ये मुझे आज हक पत्र देने का अवसर मिला है। भाइयों बहनों, आज करीब 2325 इतने से छोटे से दादरा नगर हवेली में 2325 आदिवासी परिवारों को जमीन का हक मिलना, यह आजादी के बाद की इस इलाके की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी घटना है। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे मन को कितना आनंद होता होगा, कितना सुख मिलता होगा। ये जो मैंने आपके मोबाइल फोन से ये जो लाइट जलाई थी ना, ये मेरे आदिवासी भाइयों के लिए लाइट जलाई थी, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों। आज हमारा सपना है 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे। देश की आजादी के लिए कितने लोगों ने जान की बाजी लगा दी, कैसे कैसे सपने देखे थे। क्या 2022 हर हिंदुस्तानी कोई सपना नहीं देख सकता है? यहां बैठे हुए हर के मन में एक विचार नहीं आना चाहिए कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, आने वाले 5 साल में मैं भी देश के लिए कुछ करूंगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे? दोनों मुट्ठी पूरी बंद करके मुझे बताइए, करेंगे? देश के लिए कुछ करेंगे, अपने लिए नहीं, देश के लिए करेंगे। एक छोटा सा काम भी अगर आप देश के लिए करेंगे, 2022 पूरे देश में माहौल बन जाएगा। 125 करोड़ हिंदुस्तानी देश के लिए कुछ करने के लिए निकल पड़ेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमारे देश को पीछे रख सके। भाइयों, हमने एक सपना संजोया है। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, हमारे देश का एक भी गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर न हो। गरीब से गरीब को भी रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, ये संघ प्रदेश में दादरा नगर हवेली में जो अभी सर्वे किया गया है, गांवों में 6234 परिवार इनके पास घर नहीं है, और सेलवासा जैसे शहरी इलाके में 800 परिवार है जिनको अपना घर नहीं है। 2022 तक
इन 7,000 परिवारों को खुद का घर देने का काम उसका आज प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए मैं इन सभी मेरे गरीब परिवारों को आज हृदय से बधाई देता हूं। आपने अपने मोबाइल से आज जो रोशनी फैलाई है वो उन गरीबों को घर मिलने के उत्सव की रोशनी है। और घर भी सामान्य नहीं, घर भी सामान्य नहीं, घर ऐसा होगा जिसमें बिजली होगी, पानी का प्रबंध होगा, शौचालय होगा, नजदीक में बच्चों की को पढ़ने के लिए स्कूल होगी, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी। ऐसा घर देने का हमारा इरादा है भाइयों। भाइयों बहनों, आज एक और महत्वपूर्ण काम हुआ और वो है गैस का कनेक्शन देना। और उसके साथ चूल्हा भी भेंट में मिल रहा है, कुकर भी भेंट में मिल रहा है, चूल्हा जलाने वाला गैस का लाइटर भी भेंट मिल रहा है। भाइयों बहनों, ये हमारा देश, हमारी नेता लोग, इनकी सोच कैसी थी जरा सोचिए आप। 2014 को याद कीजिए, जब हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, मेरे सामने कांग्रेस चुनाव के मैदान में थी। चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां वादा करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में बड़ी मीटिंग की, लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिए मीटिंग की और उसके बाद पत्रकार वार्ता की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या घोषणा की थी आप याद करना। उन्होंने कहा था कि 2014 के लोकसभा में हम जीतेंगे और हमारी ये सरकार बनेगी तो अभी जो एक साल में 9 गैस के सिलेंडर देते हैं हम उसको बढ़ा करके 12 कर देंगे। इस वादे के नाम पर देश में चुनाव लड़ा गया था। 9 गैस के सिलेंडर की 12 गैस के सिलेंडर, इसके आधार पर वोट मांगे जा रहे थे। आपको हैरानी होगी, आज से कुछ साल पहले पार्लियामेंट के मेंबर को 25 गैस की कूपन मिलती थी हर साल और वो अपने परिचितों को, अपने कार्यकर्ताओं को गैस का कनेक्शन देने के लिए कूपन देता था। एक साल में 25। और कुछ एमपी, अखबार में आता था उस जमाने में, वो कूपन भी काले बाजारी में बेच डालते थे, अखबारों में छपने लगा। आखिरकार एमपी को कूपन देना बंद हो गया। यानी गैस का कनेक्शन लेने के लिए पार्लियामेंट के मेंबर के घर अच्छे अच्छे परिवार के लोग कतार लगा करके खड़े रहते थे। आपने भी सुने देखा होगा, कितनी मशक्कत की होगी तब आपको गैस का सिलेंडर मिला होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनी, मैं ये सोचता था कि मेरी गरीब माताओं का क्या गुनाह, जो लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है। आप जान के हैरान होंगे दोस्तों, जब एक मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं उसके शरीर में जाता है। एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं लकड़ी का चूल्हा जलाने से
खाना पकाने से होता है, उस मां की तबीयत का हाल क्या होता होगा। और छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, मां खाना पकाती है, ये धुआं बच्चों के शरीर में भी जाता है, उन बच्चों के शरीर का क्या होता होगा। भाइयों बहनों, इस पीड़ा से, इस दर्द से, और मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, मैंने मेरी मां को लकड़ी का चूल्हा जलाते देखा है, पूरा घर धुएं से कैसे भर जाता था वो अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। तब मन में एक कसक थी कि मैं इन मेरी गरीब माताओं को इससे मुक्ति कैसे दिलाऊं। और भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया, हर गरीब परिवार में गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे, मुफ्त में कनेक्शन देंगे। 11 महीने हुए योजना लागू किए, अब तक 2 करोड़ परिवारों को गैस का चूल्हा पहुंच गया है। और आज मुझे खुशी है कि करीब 8,000 परिवार, ये दादरा नगर हवेली में भी उनको एक गैस का कनेक्शन दिया जाएगा। लेकिन यहां के लोगों की मदद से उनको कुकर भी मिल रहा है, लाइटर भी मिल रहा है, ये यहां विशेष हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं इस अभियान के लिए। भाइयों बहनों, आज यहां पर मेरे दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए कुछ साधन देने का काम हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल देने का काम हुआ है। जो देख नहीं पाते हैं ऐसे दिव्यांग को हाथ में आधुनिक छड़ी दी है ताकि सेंसर से पता चले सामने कुछ आता है तो। भाइयों बहनों, सब सरकारों में ये योजनाएं होती थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अब तक करीब 5,000 कैंप लगे हैं और लाखों दिव्यांगों को मदद पहुंचाई गई है। पहले 30 साल में मुश्किल से 50 कैंप भी नहीं लगे थे और पैसे धरे के धरे पड़े रहते थे। भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। और इसीलिए सरकार हमारी अलग अलग जगह, जिले जिले में जाकर के दिव्यांगों को खोजती है, कैंप लगाती है और भारत सरकार के खजाने से उनको संसाधन जुटा देती है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़े। उस दिशा में काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज यहां जन औषधि केंद्रों का भी लोकार्पण हुआ है। हम जानते हैं बीमार होना कितना महंगा हो गया है। सुखी परिवार हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, परिवार में पति पत्नी दोनों कमाते हो, लेकिन अगर घर में कोई बीमारी आ जाए तो घर का पूरा आर्थिक कारोबार चौपट हो जाता है। बेटी की शादी करवानी हो तो नहीं करवा पाते, मकान खरीदना हो तो नहीं खरीद पाते, दवाई इतनी महंगी होती है, डॉक्टर इतने महंगे होते हैं। भाइयों बहनों, हमने तय किया 800 जितनी दवाइयों का लिस्ट बनाया, दवाई बनाने वालों को बुलाया। हमने कहा इतने रुपये क्यों मार रहे हो भाई, ये इतना मुनाफा करके क्या करोगे। सब लाइन में लग गए और जो दवाई 1200 रुपये में बिकती थी वो 70-80 रुपये में बिकना शुरू हो गया भाई। जो दवाई 300 रुपये में बिकती थी वो 7 रुपये 10 रुपये में बिकने लग गई। क्यों? गरीब को भी दवाई मिलनी चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए, उसको भी तो जीने का हक होता है। सरकार में दम होना चाहिए, तब वो परिवर्तन ला करके रहते हैं भाई। ऐसे जनऔषधि केंद्र आज दादरा नगर हवेली में शुरू हो रहे हैं ताकि यहां के गरीब को, और डॉक्टर कुछ भी लिख करके दे दें, आप चिंता किए बिना ये जन औषधि केंद्र की दवाई लीजिए, कोई फर्क नहीं है। वो सस्ती है इसलिए खराब है, ऐसा अगर कोई भ्रम फैलाता है तो मत मानिए।
गरीबों को लूटने नहीं दिया जाएगा, मध्यम वर्ग के आदमी को मरने नहीं दिया जाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, अनेक विध योजनाएं लेकर के आज मैंने देखा जब वाईफाई की बात आई, सारे नौजवान उछल पड़े। जैसा ही वाईफाई के उद्घाटन का टीवी पे दिखाया, सबको खुशी की लहर आ गई। ये बदले हुए न्यू इंडिया का ये नमूना है। उसको लगता है जीवन का हिस्सा हो गया है। लेकिन भाइयों बहनों, एक और काम मैं आपसे चाहता हूं, करोगे? ऐसे ढीला ढीला बोलोगे तो क्या करोगे? करोगे? इधर से आवाज नहीं आ रही है। करोगे? करोगे? अपने मोबाइल फोन पर भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और भीम ऐप डाउनलोड करिए। इतना ही नहीं, अपने इलाके के सभी व्यापारियों को भी भीम ऐप डाउनलोड करवाइए। और अब कैश में पैसे किसी को दीजिए मत, उसको बताइए भीम ऐप से मैं पैसा देना चाहता हूं, तुम भी मुझे भीम ऐप से जो देना चाहते हो दे दो। आदत डाल दीजिए भाइयों बहनों। ये वाईफाई का आपको जो आनंद आ रहा है ना, अगर आप एक अपने ही मोबाइल फोन को अपनी बैंक बना दीजिए, अपने ही मोबाइल फोन को अपना बटवा बना दीजिए। कम कैश से कारोबार कैसे चले? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जंग मैंने छेड़ा है। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ईमानदारी से देश चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आपकी मदद के बिना कैसे होगा? करोगे मदद? करोगे मदद? और उसका एक उपाय है कम कैश। कम कैश। आप भीम ऐप से भुगतान करने की शुरुआत कीजिए, काले बाजारी, भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होना शुरू हो जाएंगे भाइयों। और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये वाईफाई का उपयोग, और अभी तो एक योजना बनाई है भारत सरकार ने, आप उससे कमाई कर सकते हैं। जो नौजवान वैकेशन में कमाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने पूरे देश में एक योजना बनाई है। आप अगर भीम ऐप से अपना आर्थिक कारोबार करते हैं और एक और व्यापारी को या कोई और व्यक्ति को भीम ऐप डाउनलोड करके 3 बार खरीद बिक्री करने का सिखा देते हैं, और अगर वो करता है तो सरकार की तरफ से आपके मोबाइल फोन में 10 रुपया आ जाएगा। अगर दिन में आप 20 लोगों को करोगे तो आपके मोबाइल फोन में 200 रुपया आ जाएगा। अगर इस वैकेशन के 3 महीने ये काम कर लिया तो आप 18-20 हजार रुपया कमा सकते हैं। हिंदुस्तान के हर नौजवान ने इस वैकेशन में कम से कम 20,000 रुपया कमाना है, भीम ऐप से कमाना है। अब मुझे अपने मां बाप से खर्च के लिए पैसा नहीं मांगना है, मोदी जी की योजना का फायदा उठाऊंगा, भीम ऐप का प्रचार करूंगा और हर दिन 20 लोगों को समझा करके 200 रुपया कमा के रहूंगा। ये काम हम कर सकते हैं भाई। करोगे? करोगे कि वो थैली वाला ही करोगे? पोटली है? पोटली बोलते हैं क्या? हाँ, वो नहीं करना है। भाइयों बहनों, अनेक योजनाओं का यहां आज आरंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। सारी योजनाओं का मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं।
एक साथ इतनी सारी योजनाएं, गरीबों को आवास, आदिवासी को घर, नौजवान को वाईफाई, युवकों को रोजगार, माताओं बहनों को गैस का कनेक्शन, कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई लाभ न पहुंचा हो। शायद दादरा नगर हवेली के इतिहास में आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा समागम हुआ होगा, इतनी बड़ी सरकारी योजना आई होगी और इतना बड़ा फायदा पहुंचाया होगा। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, दमन वालों को भी परेशानी होनी चाहिए, काम कैसे होता है, ऐसा जयकारा बोलिए जरा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।